امیر کا خوفناک سیلابی ریلا 13 سال بعد ملنے والے لودھراں کے خاندان کی خوشیاں بہا لے گیا۔ 15 لوگوں پر مشتمل خاندان کے فہد اسلام نے پہلے ریلے سے والدہ کو بچایا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے بھابھی کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ بھابھی اور بھتیجے کی زندگی بچانے کی کوشش، مگر پھر بھابھی نہ رہی نہ دیور۔ بیٹے کی تلاش جاری۔ ڈاکٹر اسلام کے بیٹے نے کہا، چچی مشال اور 3 سالہ کزن ہادی کو بچانے کے لیے والد نے پانی میں چھلانگ لگائی اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ بابو سر میں پانی میں بہہ جانے والے 15 سیاحوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسکول، ہوٹل، پولیس چوکی اور درجنوں مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ ناران کاغان بند، شہر قراقرم بھی 2 مقامات سے بند کر دی گئے۔ ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق بارش اور سیلاب سے 5 اموات ہوئیں۔ سیاحوں سے موجودہ صورتحال کے دوران گلگت بلتستان نہ آنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کو مزید بڑھانے کی ہدایت۔ مانسون بارشوں کا چوتھا طاقتور اسپیل۔ آج لاہور میں بادلوں نے 100 ملی میٹر بارش برسا دی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سب سے زیادہ بارش اٹک میں 125 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ وہاڑی، جہلم، احمد پور سیال، خانیوال، جوتنی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ ندی نالوں میں طغیانی، چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ تونسا شریف میں سیلابی صورتحال، فصلیں تباہ اور کچے مکانات منہدم۔ متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع۔ انڈر پاس بند ہونے سے شہری ریلوے لائن عبور کرنے سے گزرنے پر مجبور۔ فیروز والا میں بھیڑ نالہ بپھر گیا۔ نالے کے قریب کھیلتے 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچوں کو بچا لیا گیا۔ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ننکانہ صاحب پہنچ گئیں۔ دیہات کا دورہ کیا، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کہا، سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائیو اسٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں سے تباہی۔ 24 گھنٹوں میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 10 افراد جاں بحق۔ اموات کی تعداد 252 ہو گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئندہ 12 سے 14 گھنٹے میں موسلادھار بارش ہوگی۔ NDMA نے ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، تیلا گنگ، منڈی بہاؤالدین، گجرات میں بادل جم کر برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، کالام، مانسہرہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، مردان، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام، ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ سیاسی مذاکرات پر مبنی 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے لیے ناگزیر۔ دنیا خاموش۔ غزہ میں بھوک، زندگیاں نگلنے لگی۔ 15 فلسطینی بھوک سے مر گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق مئی سے اب تک غزہ میں 1000 سے زائد افراد کو امدادی مراکز پر منتقل کیا گیا، جہاں انہیں قتل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا کہ غزہ میں لوگ اجتماعی طور پر بھوک سے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی مظلوم فلسطینیوں پر بمباری، مزید 81 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ بیٹی اور احسان اللہ کو بلوچ روایات کے مطابق سزا دی۔ ڈیگاری میں قتل ہونے والی خاتون بانو بی بی کے والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مقتولہ کی والدہ گلجان نے قتل کو درست قرار دے دیا۔ کہا، احسان اللہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ ملزم سردار شیر باز ساتکزئی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ عدالت نے ملزم کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم بشیر احمد بھی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بلوچستان میں قتل ہونے والے مرد اور عورت کے والدین بھی قاتلوں کو معاف کرنا چاہیں تو یہ کسی صورت جائز نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا، شریعت اسلامیہ کسی صورت اس طرح کے قاتلوں کو معافی کا حق نہیں دیتی۔ شوگر ملز نیشنل بینک آف پاکستان کی 23.3 ارب کی ڈیفالٹر۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حکام کے مطابق 2015 میں عدالت نے بینک کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1987 سے 2015 تک کے شوگر ملز کے ساتھ معاملات ہیں۔ 3 شوگر ملز قرض کی واپسی کی قسطیں بھیج رہی ہیں، جبکہ 4 شوگر ملز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ان کی اقساط بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की इंपोर्ट पर सवालात उठने लगे। रुकन कमेटी रियाज फितियाना ने कहा, चीनी पर टैक्स कम करके 0.25% करना एक बड़ा शुगर स्कैंडल है। जुनेद अकबर खान चेयरमैन FBR पर बरस पड़े, बोले कि अवाम के लिए IMF का बहाना और सरमायाकारों के लिए सब कुछ मंजूर। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने जवाब दिया, हम काबीना के फैसलों के पाबंद हैं, हमें कहा गया था कस्टम ड्यूटी खत्म और सेल्स टैक्स कम किया जाए। FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत, तजवीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को FBR के इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म के गैर रस्मी मईशत रोकने के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से इक़दामात करने की भी हिदायत। ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है, लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। ये कहना कबलस वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद 8 से 9 मुकदमात हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, देखते हैं क्या होता है, फैसला साज मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी। 9 मई को मुनज़्ज़म अंदाज में मुल्क भर में रियासती इदारों पर हमले किए गए। मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजाएं मिली। सजाओं से वाज़ेह है रियासत ने शहदा की यादगारों और लवाहिकीन की हुर्मत को अव्वलीन तरजीह दी। रियासत किसी भी किस्म की बदअमनी, इंतशार या कौमी वक़ार पर हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाक़यात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और ज़ाती इमलाक को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई, वो आज भी कौमा में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, PTI की क़यादत और कारकुनान के वीडियो सबूत हैं कि वो 9 मई में मुलविस हैं। PTI के कारकुनान को सजाएं पहले होनी चाहिए थी। 9 मई करने और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतिसाब से बच नहीं सकते। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की फुटेजेस जारी कर दी। शजील मेमन बोले, सानह 9 मई में मुलव्विस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। अमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना तसद्दानों का काम नहीं। हमारी अपनी सूबाई हुकूमत जो है वो इनके साथ मिलिटेंट्स का मिली हुई है। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया है और ख़ुद जो है वो मॉल बनाने के प्रोग्राम में, कहाँ से हम करप्शन करें, कहाँ पे हम कमीशनें खाएं, कहाँ पे हम नौकरें बेचें। सानिया हुआ लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इमरजेंसी इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी जहाज गिराने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन्स अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाया, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा, दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाएगी। नरेंद्र मोदी ने फिर जवाब नहीं दिया, यही सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े।
मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा, पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है, इससे छुपा नहीं जा सकता। कराची के इलाके बफर जोन में मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग सरगर्म, मुलजिमान की पै दर पे वारदातें। पुलिस लाइल्म यूनिवर्सिटी की तालिबा से लूट मार की फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान तालिबा से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में शहरी घर के बाहर वारदात का निशाना बन गया। जैसे ही शहरी घर के सामने पहुंचा, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान आए, मोबाइल और नकदी छीनी और आराम से फरार हो गए। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका। कोयटा के कमरानी रोड लाशाराबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटी और भांजे को मार डाला। मुलजिम अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके केस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में 9 बेहाता लड़की पर तशद्दुद, कौमों में जाने वाली शांति दम तोड़ गई। मुतासरा लड़की को ऑपरेशन के बाद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इब्तिदाई मेडिकल मुआयने में जिनसी तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत के PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा, हाल ही में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद होंगे। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा सागदार की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। अमरीकी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। सागदार ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। शुरा का दोनों ममालिक की मौशी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा। पाक बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़राए दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ट्रेनिंग के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराककार बढ़ाने पर गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा तुर्किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्किया में 70वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनअती मेले में शिरकत। आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्किया, अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। शाहराह भुट्टो को दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा, क़य्यूमाबाद से बोर्ड बेसन ज़ियाउद्दीन चौरंगी ता ईस्ट वाफ तक शाहराह भुट्टो की तामीर होगी। सोराब गोड पर भी राउंड अबाउट को नए सिरे से डिज़ाइन कर रहे हैं। रेड लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम को तेज़ करने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा के गैंग में शार्ल बाइडन, हिलरी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप जेफरी एपिस्टन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत का क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के मातहत करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारतीय पार्लियामेंट में आज क्रिकेट बोर्ड को वजारत खेल के मातहत करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। ACC की सालाना जनरल मीटिंग से मुतालिक गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन से भी मुलाकात हुई। टीम की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया।
اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل کل ڈھاکہ میں ہوگا. میچ شام 5 بجے شروع ہوگا. 3 میچوں کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل.